Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. So this is the fourth lecture of counseling in health psychology class, and in the last session we have talked about the role of family counseling in health psychology. So we will just going to see the brief overview that how counseling help in counseling the family, and then we will be talking about different learning objectives which we are going to achieve today, and then further we will be going to see in detail that what are the techniques which would be efficiently working in helping a counselor to achieve the goal of family counseling. Okay, so here we go. First of all, to look at the learning objectives which we are going to achieve today. The first one is to familiarize you with the concept of functional and dysfunctional families. We all have different kind of families. So by the end of this lecture, you will be having the concept fully that how a person could be understandable that he is the part of a functional family or he is a part of dysfunctional family. Second thing is the assessment of issues in today's family. You have an idea that with the global time, with the problems emerging after the COVID world, there are different issues which are being part of everyone's family. And now we have to see that what are the major areas where the issues could be, pop in and how we can deal with them. Then another one is understanding of a family life cycle. We all can imagine that there are the different stages of life through which a family goes on. So we will be talking about each stage, that how on each stage, what kind of the problems could possibly be, coming up and how a person can deal with them. Another one is the role of family counselor. Now here comes a very important thing which is directly related with all of us, that in future when you will become a counselor and some of you will be specialized in the area of family counseling, how you are going to deliver that specific, techniques to the family or to the individual. So in detail, we will be talking about the family counseling techniques, and they will be very helpful to you to understand the real scope of family counseling in the life of, any individuals or any family, right? Now, looking at one of the very important thing of today's lecture, that is how do you define family? I think that for everyone, family is very precious, it's very important. And if, in my practice, when I go to PMS or CSS interviews, and I ask individuals that you have to prioritize different things. Like मैं उनसे पूछती हूँ कि अगर आपके पास family है, इज़्ज़त है, दौलत है, आप किसको prefer करेंगे? तो 99% of the time, either it's a mock behavior, either it's a true behavior, but people tend to give this answer that they will prefer the family. Because ideally this, seems to be a very logical and very, kind of an ethical answer. Because we all say, at the end, what matters is family, right? So we will be see that how do we define family. एक मुझे जोक याद आ गया जो मैंने बहुत पहले कहीं पे पढ़ा था, वो ये था कि एक देहाती होता है और वो अपने किसी दोस्त के साथ जो है वो मिलने के लिए जाता है. वो भी उसी तरह का ही होता है जैसे दोस्त एक ही तरह के हमारे होते हैं. सो वो उसको मिलने के लिए जाता है और वो बाइक के ऊपर जाता है, तो उसके साथ ना बाइक के ऊपर जो है वो उसकी माँ बैठी हुई होती है. तो वो उसको कहता है कि मैंने सोचा आज तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवा लूँ. वो कहता है अच्छा ठीक है. उसके बाद अगली दफ़ा जो आता है तो उसके साथ उसकी ना 2 बहनें बैठी हुई होती हैं. उसको कहता है मैं गुजर रहा था, मैंने सोचा तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवा लूँ. वो तीसरी दफ़ा जो है ना वो दोबारा से जब आता है तो वो उसको कहता है कि उसके साथ कोई भी नहीं बैठा हुआ होता. तो वो कहता है कि मैंने सोचा कि आज गुजर रहा हूँ तो तुमसे मिल लूँ. तो वो कहता है हाँ अपनी फैमिली मिलवाने के लिए लाए होगे. वो कहता है नहीं आज तो फैमिली मिलवाने के लिए नहीं लेके आए. तुम्हें मेरे साथ कौन नज़र आ रहा है? वो कहता है ये तुम्हारी फैमिली नहीं है. वो बाइक होती है उसकी, तो उसको कहता है ये तुम्हारी फैमिली नहीं है. सो वो दोनों मतलब इट वॉज अ काइंड ऑफ अ जोक कि भाई आपको कॉन्सेप्ट जो है इट्स हम जैसे कॉन्सेप्ट वर्सेस कॉन्स्ट्रक्ट की बात करते हैं. सो हाउ डू यू डेवलप दैट. हमारे यहाँ न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ जो है वो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है. देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम. आप में से कितने लोगों के घरों में आज भी दादा दादी नाना नानी रहते हैं? रेज योर हैंड्स. How many of you are blessed to have those elders within home? Very few are left with, unfortunately. It's less than 20%. But there was a time when एक extended family system होता था और हम कहते थे कि जी यही पूरी एक family का structure है.
then a natural social system with properties of all its own. It's not like that it's something which is being stuck, which is being static, and it could not be changed. So it clearly says that it is something which has properties of its own. It could be changeable. ये हमें different नज़र आ सकती है, culture to culture, place to place, family to family, and then one that has evolved a set of rules. हर एक फैमिली के जो रूल्स हैं, उनके जो कानून हैं, उनके जो कायदे हैं, वो फ़र्क हैं. मेरे घर में, मेरे दौर में मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं रात को मगरिब के बाद घर से बाहर जा सकूं, ठीक है. लेकिन मेरे साथ वाले घर में जो अंकल रहते थे, ही वॉज़ वेरी लिबरल इनफ. उनकी बेटियां रात को 11 बजे भी आ रही होती थी ड्राइवर के साथ, तो उनके लिए ओके था. सो इट्स नॉट गुड एंड बैड, इट्स अबाउट हाउ यू आर सेटिंग द रूल्स, राइट. सो आई एम श्योर कि आपके भी घर में about going to certain places, about visiting the friends, about doing different things in life, कुछ certain rules बने हुए होते हैं. और हम अक्सर कहते हैं कि यार मेरे घर में इस चीज़ का कोई माहौल नहीं है, ठीक है, मेरे घर में इस चीज़ की कोई इजाज़त नहीं. Can you give any example which explains the set of rule into your house? Okay, जी. मगरिब के बाद बाहर नहीं जाना. It's kind of rule which is being set up by my own house. Or anything else? Yeah. Early breakfast, timely lunch, timely dinner, no exceptions. Good. ये basically these rules are not only the managing the house, but ये आपकी पूरी life के dynamics को set up कर रहे होते हैं, ठीक है. ये सिर्फ वो कागज़ पे लिखे हुए rules नहीं होते. They are basically gauging up your life or monitoring up your life and giving you a proper direction towards life. इनका एक purpose होता है. Then roles, पावर रोल्स होते हैं घर में, जैसे हमारे कंट्री में होते हैं, पॉलिटिक्स में होते हैं, हमारी सोसाइटी में होते हैं. सेम हमारे घर में भी एक रोल सिस्टम होता है. इट रोल कुड बी गेज बाय अ फादर, रोल कुड बी गेज बाय द अम्मा जान, रोल कुड बी गेज बाय द एल्डर सिस्टर. इन सम हाउसेज बड़ी भाभी के हाथ में सारा रोल होता है. सो इट मीन्स दैट द फैमिली हैज़ डिसाइडेड कि किसको हमने कौन सा रोल देना है. देन अ पावर स्ट्रक्चर, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड वेज ऑफ नेगोशिएशन. कुछ घरों में फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ये होता है कि एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ गया, एंड देन यू हैव टू अबाइड बाय दैट. वंस अ फादर हैज सेड ये काम नहीं होएगा, तो फिर वो नहीं होएगा. बट देन देयर आर सर्टेन हाउसेज वेयर फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग टू गिव सम request, and after 2 or 3 reminders या negotiation, it's going to be accepted. और हाँ, कुछ लोगों को clearly पता होता है कि अगर अम्मी मान जाएंगी तो अब्बू भी मान जाएंगे, ठीक है. and then there comes another way कि अगर अब्बू मान गए तो अम्मी भी मान जाएंगी, ठीक है. so it's not same for everyone. और कुछ के घरों में ये होता है कि बड़ा भाई सख्त है, अगर उसको मना लिया तो अम्मी अबू ने तो कुछ भी नहीं कहना. अम्मी अबू तो बहुत ही मासूम और नाइव है, उनको दुनिया का कुछ नहीं पता. या High Court or Supreme Court, they basically exist in all the houses. It's very much true. So after spending a lot of time, we get to know कि main power जो है वो किसके पास है. बाज़ it's superfluous, पता नहीं चल रहा होता असल में किसके हाथ में है. तो वो किसी का ऐसी वो जेली वेली रोब भी पड़ा हुआ होता है. So it's something जिसमें हमें एक फैमिली की पूरी पिक्चर, एक शेप जो है, it comes into our then forms of communication. Then how you are going to communicate? Are you communicating in a way which is very transparent, very logical, it's giving some benefit to you, so that's why you are asking for a certain plea. आप कह रहे हैं मैंने रात को 8 बजे हमारा ग्रुप स्टडी है, हमारा कोलोकियम है, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमने अपने ये प्रोजेक्ट करने हैं, एक प्रोजेक्ट के 200 नंबर है, अगर मैं उस पर पार्ट नहीं प्ले करूँगी, मैं ग्रुप के साथ काम नहीं करूँगी, तो मेरे जो हैं उसमें से 200 मार्क्स जो हैं वो कट जाए. दैट्स लॉजिकल, थोड़ा सा बताने वाला कि एकदम से ना नहीं आएगी. एक ये कह रहा है कि मैंने 8 बजे जाना है, सारी सहेलियाँ आ रही हैं, तो आई विल ऑल्सो गो एंड आई विल हैव सम गुड टाइम, और हम कुछ पढ़ेंगे भी, हो सकता है ना इजाज़त मिले. बट ये द पैटर्न कैसा होना चाहिए वो भी हम इस पर फर्दर बात करेंगे. इट शुड बी द डायरेक्ट, इट शुड बी द क्लियर, नॉट शुड बी द वन विच इज़ वेग एंड थिंग्स लाइक दैट. And then the forms of negotiation and problem solving that allow various tasks to be performed effectively.
If we have all these things, certain rules, certain roles, certain forms of communication, certain set of pattern and rules, it means that that family is being governed in a subtle way, और वो वहाँ पर कुछ बेहतर performance जो है हमें उस family के members की as individuals नज़र आएगी. You know, so that's very important to understand that it's not just some of the people, you know, living together because they are related by blood. It is something which is governing your whole life. It is this much important. कुछ लोग जो घर से ही तंग होते हैं ना, वो फिर पूरी लाइफ में सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते, because they are lacking this thing. They are lacking the family support. राइट. सो जितनी रीसेंट रिसर्च आ रही है ना, वो फैमिली सपोर्ट की इंपॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है. सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल फ्रॉम द फैमिली, इट मीन्स दैट यू आर गेटिंग समथिंग गुड इन टू योर लाइफ. ओके, सो मूविंग ऑनवर्ड, looking at to the crux which is important to us, that how and why family counseling is important. Definitely when there is a problem in structure of a family, when there comes an issue which is a center point of disconnection to the family, we need family counseling. And family counseling is something which is not a simple thing. It's not something जो हम ये कहें कि जी ये हमने कोई अपनी मर्ज़ी से कुछ डिवाइस कर लेना है, या हम जिसके लिए जो हमें अच्छा लगेगा हम कर लेंगे. It's not like an hodgepodge kind of a thing. It's a complete subtle program which provides information on a personal level and on a professional guidance to the member of the family concerning specifically to different matters. अब किसी फैमिली का प्रॉब्लम जिसके लिए उसको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी वो हेल्थ मैटर हो सकता है. मे बी उस फैमिली में कोई there would be someone who is dying of cancer. ठीक है, you know that it's the 3rd or 4th stage and survival is difficult, and that person is very, you know, important to the family. हर एक के लिए अपनी फैमिली मेम्बर इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो फैमिली जिस क्राइसिस से गुजर रही है उसके अंदर उन्हें बहुत इश्यूज आ रहे हैं. फैमिली काउंसलिंग कुड बी अ टेक्निक विच कुड बी प्रोवाइडेड टू दैम. एंड देन एज अ केयर ऑफ अ सिवियरली रिटार्टेड चाइल्ड, कहीं पर ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, लो जो है वो अपना आईक्यू के साथ होते हैं, जिनके साथ कोई माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है. प्रॉब्लम की ग्रेविटी बढ़ती जाएगी जिस तरह का उसका नेचर होगा. फिर इसी तरह डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, यू नो दे द डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स विच कम्स विद द चिल्ड्रन. सो उनके साथ डील करने के लिए द फैमिली हैज़ टू डू समथिंग स्पेशल टू मीट देयर स्पेशल नीड्स. Right? Whenever you see a parent with a special need, you understand that they are doing something extra in their lives. And then the risk of transmitting a known genetic defect. So we have already talked about that the genetic defect could be any bleeding disorder, it could be any mental disorder, and it could be any physical problem as well. So if there is anything कि chronic diabetes है फैमिली में, डायबिटीज ट्रांसमिट हो सकती है, तो बचपन से ही बच्चों को उनको उस तरह के डाइट पैटर्न्स के ऊपर लेके चलना, या अगर खुदा न खास्ता कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उनकी ब्लड की अरेंज करना, मैनेजमेंट करना फ्रॉम द ब्लड यू नो डोनेशन, डिफरेंट सोसाइटीज़ उनको रजिस्टर कराना एंड थिंग्स लाइक दैट. ओके, could you help me Maza for the next slide? Now looking at the type of different families, that how families could be either functional or families could be dysfunctional. This is something very, very interesting to know, that there is no person in this world who could say that I belong to a dysfunctional family until and unless they have been described the concept that how we can categorize them into being a functional family and a non-functional family. So looking into the detail of a functional family, leave behind this definition what is being given. But we have seen there the certain families where the communication between the parents and between the children is very direct. They don't say कि जैसे होता है ना कि आप कोई बात कहते हैं किसी को लेकिन किसी और को सुना रहे होते हैं, जिसको कहते हैं ना कहना किसी और को, सुनाना किसी और को. इफ़ द मिडल वन इज़ नॉट वर्किंग राइट इनफ, तो आप ये नहीं कहते अपनी दरमियान वाले बच्चे को के बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए ये नहीं कहते कि बड़े को डांटो और बड़े को डांट के कहो कि तुम्हें पता होना चाहिए था ये काम होना चाहिए, और वो जो दरमियान वाला है उससे अज्यूम करना कि ये सुनेगा और ये कर लेगा. जैसे वो मुहावरा भी है ना, वो बहुओं के बीच में कि कहनी किसी को सुनानी किसी को. तो आई मीन दिस शुड नॉट बी द केस विद द फैमिलीज हु आर फंक्शनल लव. दे जस्ट राइट अवे स्पीक टू द पर्सन जिसका प्रॉब्लम होता है कि बेटा आपने यहाँ बहुत मैस मचाया हुआ है, यहाँ से आप क्लीन करें सारा कुछ. ठीक है जी.
एक बच्चा जो है वो पेरेंट की बात को अगर माइंड कर लेगा, दिस इज योर क्वेश्चन? Not like बच्चा for example a daughter-in-law or son-in-law, अगर वो माइंड कर लेंगे तो फिर तो डिसफंक्शनल ना हो जाए सारा. हाँ, अब आप ये कहना चाह रहे हो कि assuming that if your communication pattern would be direct and clear, it would be creating a kind of problem into the family, और वो कोई mind ना करें. Now here comes an issue which is very practical, which you have rightly mentioned, कि हमें वो communication करनी किस तरह से है. Unfortunately, we have not been told the way to communicate the things with other. हमें बचपन से कभी ये नहीं बताया जाता कि हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमने किसी से बात कैसे करनी है. हमें ये ज़रूर बताया जाता है कि आपने बातें माननी कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो हमसे सीनियर या बड़े होते हैं ना, उनको उस वक्त ये चीज़ फ़ायदा दे रही होती है. सिमिलरली लाइक जैसे हमें ये बताया जा रहा होता है कि आपका ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, लेकिन हमारे राइट्स क्या हैं उसके बारे में हमें कोई एजुकेट नहीं कर रहा होता. सो दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ अ फैमिली, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ अ सोसाइटी, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ अ नेशन. ये बहुत किचमिच हो गया है. सो कमिंग टूवर्ड्स योर आंसर कि इफ़ अगर हमें ये लगता है कि हमने बात करनी है तो वो करनी कैसे. बात कभी भी थ्रेटनिंग मैनर में नहीं करनी. बात कभी भी ऐसे नहीं करनी दैट इट इज़ गिविंग यू द आइडिया एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिसरिस्पेक्टफुलनेस टू अदर पर्सन. किसी की आपने ऐसे उसके साथ बात नहीं करनी कि उसको ये लगे कि मुझे किसी चीज़ के लिए एक्यूज़ किया जाए. वी कैन वेन एवर वी स्पीक विद अ जेंटल मैनर, प्यार से बात करते हैं. हमारा तो दीन ही हमें यही सिखाता है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उन्होंने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला दिया. किस चीज़ से? अपने इखलाक से, अपने शुआर से. ठीक है, तो बात करें, ऐसे करें कि दूसरे के दिल तक पहुँचे, उसके दिमाग को जाके हिट नहीं करे. ठीक है, अगर आराम से आप वही जुमला कहते हैं कि बेटा आप लोगों ने यहाँ पर ऐसे किया हुआ है तो आओ हम मिलके उठाते हैं. ठीक है, इट विल नॉट गिव दैट फीलिंग. बल्कि ये भी ना कहें कि आपने किया, बस को कहें यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, हम मिलके साफ़ करते हैं, अच्छा लगेगा हमें. ठीक है, बाज़-औक़ात हम अक्सर बच्चों को कॉन्सेप्ट देते हैं जल्दी जल्दी काम करो, मेहमान आने वाले हैं. आई मीन दैट्स नॉट अ गुड वे टू एजुकेट दैम दैट वी आर गोइंग टू क्लीन द हाउस व्हेन द गेस्ट आर कमिंग. आप यही एजुकेशन दे रहे हैं ना, that the house should be clean enough when someone else is coming. No, the house should be clean enough because you have to sit in a clean environment. That's the thing which we need to educate. Okay, then the rules are the clear, honest and flexible. Clear and honest rules क्या होते हैं? That a rule which is applied to person A in a family is applied to the person B in a family. If a father is supposed to sit on a sofa, कि वो अपने पाँव ऊपर करके बैठ जाएं, रिलैक्स होकर बैठ जाएं, तो फिर बच्चों को भी ये इजाज़त होनी चाहिए. अगर आप बच्चों को नहीं दे रहे तो देन यू हैव टू बिहेव योर सेल्फ इन अ मॉडल वे. क्योंकि सबसे बेस्ट लर्निंग किस चीज़ से होती है? ऑब्जर्वेशन से होती है. और ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट कौन देता है? एल्बर्ट बेंडूरा देता है. राइट, शाबाश. सो हमने वो करके दिखाना है जो कि हमने अपने बच्चों में देखना है. सो क्लियर बात करें. ये नहीं कि गेट पे कह दें कि जाके कोई पूछने आया और मामा कह रही हैं कि बता दो कि मामा घर पे नहीं है, पापा कह रहे हैं कि बता दो पापा घर पे नहीं है. ठीक है, सो द काइंड ऑफ unclear communication, the kind of the vague ideas you're inculcating in your children are going to bounce back to you. कि वो बड़े होने के बाद कोई काम जो नहीं बताना चाह रहे होंगे वो आपको कहेंगे that we have not done this thing just because कि वो कहेंगे कि घर वालों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कह देंगे कि हम तो वो फ़लाँ काम कर रहे थे. ठीक है, सो वो पैटर्न्स आप बचपन में ही लर्न करते हैं. हम कहते झूठ नहीं बोलना. अभी रिसेंटली हमारे साथ ये हुआ है कि हम जा रहे थे तो मेरे भाई का बेटा सो गया, तो हम उसको उठाने के लिए देखो आइसक्रीम मतलब बाहर आया, ये हो गया. तो मेरे साथ मेरे फादर बैठे थे, तो उन्होंने कहा बेटा आपने जो भी करना उसको सच बताओ. बिल्कुल सही. अभी से झूठ बताओगे तो बाद में जब हम कहते हैं सच बोलो तो वो यही. और आपको पता है कि ये इतनी प्यारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये हदीस कुदसी है कि माओं के लिए ये कहा गया है कि अपने बच्चों को बहलाने के लिए कभी झूठ ना बोलें, ये कह के कि तुम आओ और मैं तुम्हें कुछ दूंगी, कोई चीज़ दूंगी, चाहे ख्वाह आपके पास एक खजूर की गुठली क्यों ना हो. आई मीन यू शुड हैव समथिंग टू गिव हिम. अगर आपने किसी बच्चे को कहा है कि तुम आओ मेरी बात मानो, मैं तुम्हें कुछ दूंगी. सो यानी एक माँ को भी अपनी औलाद को बहलाने के लिए भी झूठ बोलने से मना किया गया. सो द कम्युनिकेशन पैटर्न्स शुड बी वेरी ऑनेस्ट, अदरवाइज डिजास्टर विल बी certified in a family. Then there is an overall sense of love, happiness and peace that
permeates the unit. अब इसकी बात क्यों हो रही है? रूल बना दिए, कानून बना दिए, कायदे बना दिए, सारा कुछ मैकेनिकल तरीके से चली जा रहा है, ठीक है? देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ लव एंड हार्मनी. सब लोग सुबह 9 बजे उठते हैं, सब लोग दांतों में ब्रश करते हैं, सब लोग साफ़ सुथरा सा ब्रेकफास्ट खाते हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ सच बोलते हैं. डजंट इट सीम ऑल वेल? कुछ मैकेनिकल सा लग रहा है. देयर शुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ सम लव, हैप्पीनेस, हार्मनी, थोड़ा प्यार, मोहब्बत, मजाक, सारा पूरा ड्रामा जो है वो मुकम्मल होना चाहिए. देन दिस कम्स यू नो इन अ गुड शेप एंड इट बिकम्स अ कंप्लीट यूनिट ऑफ अ फैमिली. Okay, so next we will be see that what are the components of a dis family functional, जिसमें हम देखते हैं कि एक family जो है वो अच्छे तरीके से functional नहीं कर सकती. Right away the functional family and the dysfunctional family are kind of opposite to each other. So जो चीज़ें आपको functional में नज़र आ रही हैं, of course they are not going to see into the dysfunctional family. Looking, the aggressive forms of abuse are used, which includes many things. Aggressive forms में क्या होता है? You are frustrated, you don't have a channel and you don't have a way out to do certain thing. सामने मुलाजिम आ गया, बच्चा आ गया, and you are just yelling on them. तुमने क्या कर दिया? सारा घर में आके गंदे पाँव से सारा फर्श खराब कर दिया, मेरी तो जान ही अजाब में आ गई, मैं तो सारा दिन घर में यही करती रहती हूँ. And you have just put down all your aggression into some other person. Then भाई ये कि वो उसको देखो, वो सुस्त पड़ी होगी कहीं पे. I mean these are the kind of the words we usually heard from different people, जो घर में लोगों को दिए जाते हैं कि ये सुस्त है, ये बेकार है, ये निकम्मा है, ये कुछ और है. कुछ और बताएं मुझे, कुछ हेल्प करें. क्या नेम कॉलिंग्स होती हैं घरों में? मोटी है, हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. घर में अक्सर ये तो प्यार से कह देते हैं बड़ी मोटी है. और क्या कहते हैं? हाँ, उनको भी ताने पड़ते हैं. हाँ, अच्छा. सो टाइम हैज़ चेंज्ड. हमारे ज़माने में कहते थे शादी होगी तो जो मर्ज़ी कर लेना, अब कहते हैं जॉब हो जाएगी तो जो मर्ज़ी कर लेना. आई मीन दिस इज़ अ सेकेंड टियर काइंड ऑफ एन अब्यूज़ टू अ पर्सन, कि उसको जो है वो आप जी हाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो. आई मीन दीज ऑल आर द फॉर्म ऑफ द अब्यूजिव वेज. नौकरी है नहीं और शशके इतने हैं, ठीक है, कपड़े तुमने इतने ब्रांडेड पहनने. आई मीन दीज आर द वेज जो कि प्यार से, मजाक से, बाज़ुकात गुस्से से, बाज़ुकात जानबूझ के दे आर बीइंग कम्युनिकेटेड टू अ पर्सन विच हर्ट्स हिज और हर सेल्फ इस्टीम इन अ वेरी बैड मैनर, ठीक है. और ये प्रोसेस चलता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. This hurting of self-esteem goes on, and this is the very reason that you will be surprised to know that in underdeveloped countries like Pakistan, India and Bangladesh, the average score of self-esteem is 15% lesser than the developed country. रोजनबर्ग का जो सेल्फ इस्टीम का स्केल है, आप सब ने टेस्टिंग में पढ़ा होगा, 40 उसका टोटल स्कोर है, जिसके ऊपर वेस्ट के अंदर जो है एवरेज स्कोर 35 है, और उसका जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें उसका एवरेज स्कोर 25 और पाकिस्तान में उसका एवरेज स्कोर 20 है. यानी हमारी सेल्फ इस्टीम का इतना बुरा हाल है, विच इज़ अलार्मिंग साइन टू अस. ओके, देन अग्रेसिव बिहेवियर्स आर जनरली डायरेक्ट एंड ऑब्वियस. जैसे आपने किसी को थ्रेट किया, जैसे आपने किसी को जो है वो ऑर्डर लगा दिया कि ये शाम के सारे ये काम तुमने करने हैं, और उसमें इस तरह की आपकी एक हिरारकी है कि वो बंदा आपको आगे से ये नहीं कह सकता कि भाई मेरी तो हालत आज ख़राब है काम कर करके, मैं मज़ीद नहीं कर सकता. यू कान से एनी वन नो, यू कुडंट बी एन असर्टिव पर्सन इन हाउस. कुछ लोग होते हैं जो बाहर जॉब में बड़े धड़ल्ले से काम करते हैं, उनका बड़ा नाम होता है, लेकिन घर में उनको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होती, उनको कोई नहीं सुन रहा होता. वो बेचारे घर में सबकी सुन रहे होते हैं, ठीक है. Anyone could relate to it? I can relate myself. ठीक है, कभी कभी मुझे घर वाले कहते हैं तुम्हें कौन सी साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, मैं कहती हूँ जी मैंने नहीं पढ़ी हुई, वो तो ऐसी गलती से पढ़ी. अच्छा, in such families there is an indirect and dishonest communication pattern. यहाँ पर dishonest and जो हमारे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन पैटर्न्स हैं, ये बिल्कुल उसी के ऑपोजिट हैं जिसकी हमने अभी फंक्शनल फैमिली में एग्जांपल्स दी थी. दीज आर द फैमिलीज विच ऑफन एक्सपीरियंस होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड लोनलीनेस. क्या होता है? यू आर लिविंग अमंग
3 or 4 people or 5 people or sometimes even more, but you have that concept of dejection, that feeling of loneliness, that you are not being heard, your voices are never being heard, you can't say whatever is in your soul, whatever is in your heart. So these kinds of feeling of depression, anxiety and loneliness, are the trademark of a person who belongs to a dysfunctional family. Okay, so here you are all well aware with the concept of dysfunctional and functional families. Any queries related to that? No. This was interesting as well as very simple and easy to understand, because this is something we all can relate with us. Now coming back, moving forward towards the concept and issues in families. Bauman was one of the researchers who has been extensively working for the families and family counseling work and family counseling theories. So he basically talked about 8 interlocking concepts, and these interlocking concepts are very, very important in understanding the whole dynamics of a family. The first one is a triangle. Now triangle is always apparently seem to be a stable relationship. It's a small, relationship system, and on this system, one side is conflict, and and 2 sides are in harmony. Like generally, when we see people and we see that he's well off, he doesn't seem to have any problem, he's well adjusted in his marriage, he has a good job, he has a good car, but we doesn't see that he has a child at home who is severely sick, right? So there are the certain parts which are into harmony, and then there are the few parts which are into conflict. That concept is being called triangle. अगर काउंसलर के पास कोई आता है तो वो कह सकता है कि इसका triangle issue है, right? Then differentiation of a self. What do you understand by the concept of differentiation of a self? Can anyone give me any idea about it? Indifferent हो जाते हैं ना लोग, जी बेटा. They need approval and validation from others, right? Most of the time women are just like, Oh, हाँ, that you have done certain thing and 8 times you are asking to another person that सब ठीक हो गया था, मैं अच्छी लग रही थी, मैं बिल्कुल perform अच्छा कर रही थी. That you again and again need an approval. So the variance in individuals in their susceptibility to depend on others for acceptance and approval. It really doesn't matter how good you are, how well presented you are, how capable you are, but you still need someone others' remarks to get your self-approval. And why it becomes a problem? It becomes a problem because in this world, there are very few people who give you approval. People don't approve your good things. अगर कोई बंदा बहुत अजीम काम कर रहा है, बहुत बड़ा वो कोई सोशल वर्कर है, लोग कहते हैं अपने नाम के लिए कर रहा है, हमें क्या लगे. एक बंदा है वो मोटिवेशनल स्पीकर है, दुनिया जान की ताकत लगा के वो सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, क्यों कहते हैं यार फेम के लिए कर रहा है, पता नहीं कितना कितना पैसा एक टॉक का लेता है, अंदर से पता चलता है वो कुछ भी नहीं ले रहा. ठीक है, मतलब we don't see the reality in detail, but we just often give the sweeping statements and comments, and it becomes a problem that people don't get approvals where they have this problem कि उनको validation की ज़रूरत है, right? हाँ, मासूम सी वाइफ्स हर दफ़ा तैयार होकर चाहती हैं कि खावन उनको बताएं कि वो बहुत हसीन लग रही हैं. उनके लिए इतना मैटर नहीं करता, वो देखते भी नहीं है सही तरह और वो बताते भी नहीं. दिस इज़ अ सोशल प्रॉब्लम. जी बेटा. Of course, perspective is very important for everyone. Sometimes हम जो ये छोटी सी simple की भी example की भी बात कर रहे हैं, इसमें भी अगर हम इसको perspective में रख के देखें ना, तो it has so many connotations to explain. So coming towards the next thing, which is nuclear family emotional system. Now, why I speak about nuclear family emotional system? Because when someone is a part of a nuclear family, then there's the problem that they have very few people in family, and their emotions are often very easily readable to each other. And when there becomes an issue,
in expressing their emotions on a certain level, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और उनको उन इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए, उन इमोशंस को ठीक करने के लिए आपके पास कोई सपोर्ट नहीं होती, जो कि सोशल सपोर्ट सिस्टम होता है जो आके उन्हें ठीक करे। जैसे इफ़ देयर इज़ अ यंग कपल हु आर मैरिड एंड दे आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली एंड assuming that they are normal and good and acceptable people around them, तो वो दो लोग जो हैं वो अगर एक दूसरे से थोड़ी देर बात नहीं करेंगे तो someone is going to ask क्या बात है तुम दोनों बात नहीं कर रहे, राइट? एज इफ जैसे दो फ्रेंड्स होते हैं, वो सारा दिन में अगर 2 घंटे बात नहीं करते तो तीसरी फ्रेंड पूछते क्या बात है यार सना और आमना, तुम नाराज़ हो आपस में? तो कुछ बात शुरू होती है, निगोसिएशन शुरू होती है और हालात में कुछ तब्दीली आ जाती है, वो यहाँ पर इधर लग जाता है या इधर लग जाता है। In a nuclear family system, when there is a conflict, there is a moment of a silence between two individuals. There is no one else to intrude, and often it becomes an emotional problem. Marital conflicts जो हैं वो बहुत सारे होने की वजह ये होती है कि expectations versus reality में बड़ा huge difference होता है, right? So it turned up into a way where we find enough कि जी conflicts are more and harmony is less. Then dysfunctional in one spouse. Dysfunction, how do you define dysfunction? Can anyone elaborate? Dysfunction क्या होगा? एक spouse की टांग नहीं होगी। Okay, of course, it's apparently seem to be disability होगी। Disability physical, mental, emotional, psychological, occupational, right? So the disability could comes into various forms. It could be the physical disability, emotional disability, disability at cognitive level, कि आपके cognitions जो हैं वही ठीक नहीं है, faulty cognitions हैं, आप हर बात से कोई गलत मीनिंग ड्राइव कर लेते हैं, आपकी ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। So I mean to see that there could be the dysfunction in either a man and either in the women at any part of level, कुछ भी हो सकता है। Then impairment of one or more children. In what ways a child could be impaired? Physically, mentally, emotionally, educationally भी हो सकता है, भाई उसका बहुत poor performance है स्कूल में, बार बार फेल हो रहा है, लोअर ग्रेड्स ले रहा है, और पेरेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम है कि without they are paying heavy tuitions and school fees and child is not performing. So there could be the different ways जो कि बच्चों में हो सकती है, there could be different health issues and there could be different physical issues and things like that. And then emotional distance. Can anyone explain me how emotional distance comes into a person's life? Where comes a stage when, yes please, misunderstandings leads towards emotional distance? Okay, let's assume that we are talking about one's own self, one individual self, where he is struggling with his own self, his or her own self, and there is nothing else around him. कोई misunderstanding नहीं है, कोई external stimuli नहीं है, फिर emotional distance कहाँ से आता है? अभी तो वो बात की स्टेज पे ही नहीं आया ना, फिर सेल्फ फोकस नहीं है, ठीक है। ठीक है, और इनसिक्योरिटी हो सकती है फॉर एनी रीज़न, ठीक है। लेट्स ब्रेनस्टॉर्म मोर। सबसे पहले इमोशनल डिस्टेंस बायोलॉजिकल रीज़न से भी होता है। देयर आर द सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स which excrete or which do not excrete into a form required amount, और आप चीज़ों को परसीव इस तरह करते हैं कि आपके अंदर से एम्पैथी और चीज़ें और इमोशंस जो हैं वो आपके रेगुलेट ही नहीं हो पा रहे होते, एक इंडिफरेंशिएशन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिसको हम देख के कहते हैं ना फ्लैट इफेक्ट स्किज़ोफ्रेनिया का। तो इमोशनल डिस्टेंस की वो इंतहा है, लेकिन उसकी जो इब्तदा है ना नॉर्मल स्पाउजल रिलेशनशिप के अंदर ये होती है, डोंट फील फॉर अदर्स, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है तो भाई मैं क्या करूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी में बड़े मसले हैं, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंग्स लाइक दैट? नॉट मैनी, आई एम श्योर। इफ़ यू सी एनी वन ग्रीविंग यू फील फॉर दैम, इफ़ यू सी एनी वन इज क्राइंग यू जस्ट गो टू दैम एंड यू आस्क दैट क्या बात है भाई, मुझे मतलब कहना है, एम आई बी ऑफ एनी हेल्प, या एटलीस्ट यू जस्ट ट्राई टू गिव दैम अ लिटिल कम्फर्ट जो आप एज अ पासर बाय दे सकते हैं। द अदर वे आई वॉज गोइंग डाउन फॉर द लेक्चर वी हैव विद Dr. Junaid Rasool, आप लोगों की क्लास के साथ। By the way, that was an excellent lecture.
तो मैं उसमें स्टेयर्स से ऊपर ऑफिस से नीचे F32 में जा रही थी. देन आई सॉ देयर वाज अ वेरी टाइनी वेरी स्लीक गर्ल सिटिंग ऑन अ स्टेयर्स. मैंने साइड से उसका फेस देखा तो आई कुड इंस्टेंटली सी अ वेरी स्ट्रेंज फेशियल एक्सप्रेशन ऑन हर फेस. तो मैं थोड़ा सा नीचे उतर के आई तो मैंने देखा कि शी वॉज टेक्सटिंग समथिंग ऑन हर मोबाइल बड़ी तेज़ से, और वो मुझे थोड़ी सी कुछ डिस्टर्ब सी लगी. अभी मैं उसको आगे से नहीं देखा था. तो मैंने उतरते हुए ना उसके ना ऐसे आई जस्ट डिड अ पैट ऑन हर शोल्डर. अक्सर मैं स्टेयर्स उतरते हुए बच्चों को इस तरह करती हूँ, जो सीढ़ियों में बैठे होते हैं उनको दिखाती हूँ कि लिखा हुआ है सीढ़ियों पे बैठना मना है और उसके नीचे वो बैठे होते. सो आई जस्ट डिड एस अ पैट ऑन हर शोल्डर. शी इंस्टेंटली स्टार्टेड क्राइंग. शी वॉज ऑल इन टीयर्स. तो मैंने 2 स्टेप नीचे उतर के उसका फेस देखा तो ऐसे लगा कि बिल्कुल बुरा हाल है उसका. तो आई स्टार्टेड कि मैं कुछ बोलूं, बट मुझे लगा कि वर्ड्स वोंट हेल्प देयर. सो आई जस्ट हग्ड हर. अब वो बैठी हुई है इतनी छोटी सी बच्ची, मैं खड़ी हूँ, मैंने उसको हग कर लिया. फॉर क्वाइट गुड 5 minutes वी वर हगिंग ईच अदर और शी वॉज जस्ट क्राइंग. मैं देख रही हूँ कि मैं सीढ़ियों में खड़ी हूँ और आई नीडेड टू हैव सम हेल्प कि कुछ ब्रेक आए. सो आई मीनवाइल सॉ ऊपर से नीचे के द रिसोर्स पर्सन एंड गेस्ट केम और मैंने इशारा किया लाइद भाई को कि यू जस्ट अंदर ले जाएं और मैं आई एम कमिंग. मीनवाइल आई सॉ दैट डॉक्टर आमना इज़ कमिंग एंड आई डॉक्टर आमना खावर. तो मैंने उनको कहा आप इधर आए, मैंने उनको पीछे खड़ा किया स्टैंड बाय के लिए. देयर वाज अ चांस कि वो बच्चा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है, उसको मैं यहाँ छोड़ दूँ. स्टेयर्स थी, आई हैव मतलब सेफ्टी प्रिकॉशनरी चीज़ों की वजह से भी मैं उसको वहाँ नहीं छोड़ सकती थी. सो मैंने उसको 1-2 जुमले कहे तसल्ली के कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एंड कोई बात नहीं, कभी रो लेना चाहिए ये वो. बट आई फाइंड दैट इतना कोई बहुत ज़्यादा एकदम फ़र्क नहीं पड़ा. फिर मैंने उसका ऐसे चेहरा पकड़ के पूछा यू वांट टू सिट इन माय ऑफिस, यू नीड सम स्पेस. तो उसने कहा येस. तो मैंने कहा ओके चलो आप मेरे ऑफिस में बैठ जाओ. मैंने डॉक्टर आमना को कहा आप इसको ऊपर ले जाएं और मेरी टीए को कहें इसको चाय पिलाए और इसके साथ थोड़ी देर बैठे. तो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि वो थोड़ा बेहतर फील करी थी तो वो चली गई. आई कुड नॉट गेट हर नंबर क्योंकि मैं उसको इस सिचुएशन में नहीं थी कि मैं उससे पूछती कि आप किस डिपार्टमेंट के हो. सम टाइम दिस कम्युनिकेशन डजंट हेल्प कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से हो, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो. यू कांट आस्क दिस टू द पर्सन हु इज़ एट द वर्ज ऑफ दिस लेवल. उसको आपके इस इंक्वायरी आपकी उसके लिए बहुत टॉर्चरस होगी, राइट. सो द मिनिमम द लिटिल आई कुड हैव डन वो ये कि मैंने उसको उतनी देर के लिए थोड़ा सा बस देख लिया. शायद उसका थोड़ा कथारसिस हो गया होगा और वो बेहतर फील कर रही होगी. सो इमोशनल डिस्टेंस ये है कि आप किसी की तकलीफ़ देख रहे हैं एंड यू जस्ट मूव ऑन, यू डोंट हैव टाइम, राइट. लेकिन कभी कभी हम इंटेंशनल भी इमोशनल डिस्टेंस करते हैं, बट इट शुड नॉट बी डन all the time on purpose because then it becomes a problem. So looking into the next thing, which is the multi-family projection process. Okay, the transmission of emotional problems which comes from parent to child. This is something very obvious and I think in psychopathology and other classes you have been reading about this कि किस तरह एग्जाइटीज़ और किस तरीके से डिफरेंट जो है वो मूड डिसऑर्डर्स जो हैं दे रन इनटू द फैमिली. इसी तरह बहुत सारी साइकियाट्रिक इलनेसेस हैं वो भी रन करती हैं. बाज़ुका दे आर ऑफ अ माइनर स्केल, बाज़ुका दे आर ऑफ अ मेजर स्केल, बट वी अंडरस्टैंड कि एक पैटर्न स्पेशली जो जनरलाइज एग्जाइटी है ना ये इट रन्स इन फैमिली. ये मैंने बहुत फ्रीक्वेंट देखी है. तो और पैटर्न भी वही होता है सेम, बिकॉज कुछ लर्नड भी होते हैं लेकिन जेनेटिक भी होते हैं, दोनों चीज़ें चल रही होती हैं. देन मल्टी जनरेशनल ट्रांसमिशन प्रोसेस दैट एट द ट्रांसमिशन ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस इन द लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस वंस. कैन एनीवन गिव मी एनी आइडिया अबाउट दिस, दैट हाउ डू यू अंडरस्टूड दैट? कोई ट्राई करेगा? कोई ब्रेनस्टॉर्म करे थोड़ा सा. Freudian projection comes into your mind with differentiation. जी बेटा. जब हम अपनी प्रॉब्लम या अपना दूसरे पर प्रोजेक्ट करके बोल रहे होते हैं कि मतलब अपनी जैसे मैं हूँ कि सुबह उठना बहुत बुरा है, मैं कि सभी के लिए उठना बहुत बुरा है, सुबह नहीं उठ सकते, ये होता है, इस तरह अपना दूसरे पर प्रोजेक्ट अपना दूसरे पे. Now there comes that the transmission of small differences in level of differentiation between parents and their चिल्ड्रन. समटाइम्स ये होता है कि सिर्फ वो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में नहीं होता, उससे भी पीछे जनरेशन से आ रहा हुआ होता है. कुछ चीज़ें होती हैं कि हम कहते हैं कि भाई ये चीज़ों की तो कभी हमारी दादी ने भी नहीं इजाज़त दी थी,
दे द कम डिफरेंट थिंग्स जो कि बड़ी मुश्किल हो जाती हैं. जैसे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ. वी वेंट टू अ वेडिंग. वहाँ पे ना एक फैमिली थी, उसमें शादी थी और 4-5 बहनें थी और एक भाई था. तो एक बहन जो थी ना, वो सबके बच्चे जो थे ना वो सरबाला बने हुए थे, जो हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता है ना सरबाला बनने का. तो बहनों के बच्चे भाई की शादी पे सरबाले बनते हैं. तो सबके बने हुए थे, जिस जिसके बच्चे थे. बच्चियाँ थी वो नहीं बनी हुई थी. और एक बहन थी जिनके 2 बच्चे थे, उन्होंने ना वो जो सफ़ेद वाले पहने होते हैं, क्या कुल्ला शेरवानी टाइप, वो कुछ नहीं पहना हुआ था, वो सिंपल कपड़ों में थे. तो मैंने पूछा भाई वाई दे आर डिस्क्रिमिनेटेड. उन्होंने कहा उनकी बहन ने कि मेरी तो जो इनकी जिनके मेरे हस्बैंड की जो दादी है ना, उनके ज़माने से वो कहते हैं हम कभी लड़कों को सरबाला नहीं बनाते. मैंने कहा क्यों? क्योंकि वो मर जाते हैं, राइट. क्योंकि उनके ये एक्सपीरियंस कोई रहा कि किसी की शादी में किसी को सरबाला बनाया एंड ही पास्ड अवे, वो बच्चा. सो उन्होंने कहा कि हमारी फैमिली में ऐसे बहुत वाक़यात हो चुके हैं. थोड़ी देर तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, बट दैन ग्रेजुअली व्हेन आई एक्सप्लोर्ड आई केम टू नो दैट देयर वर 2 इंसिडेंट्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ दोज 2 इंसिडेंट्स ओवर द पास्ट 50 years दे हैव अज्यूम्ड कि ये ऐसा ही है. सो वो बच्चे दे रियली वांटेड टू बिकम, वो दोनों अमेरिका से आए थे शादी अटेंड करने. वो बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि उनको भी वो लिफाफे मिलें जो पैसों वाले सबको दे रहे हैं, इधर इज 200 रुपीज़ और 500, बट दे वर यू देखे. तो मैंने ना उनको भी पकड़ा दिए. मैंने कहा चलो आपने बनना नहीं है, बट यू कैन टेक दैट. सो अगर वो कोई छोटे से पैसे किसी बच्चे को मुझे देख के कुछ और लोगों ने भी उनको दे दिए. सो आई मीन इट कम्स समटाइम्स कि एक वो आपके ट्रांसमिशन प्रोसेस में फिर वो दिमाग में बैठ जाती है बात कि दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. Then the emotional cutoff. The emotional cutoff is the problem जो कि आजकल की पाकिस्तानी सोसाइटी में it's going to be on a bloom, on a rise और uncontrollable होता जा रहा है, especially with the adolescent population. Anyone agrees? Yes. कि emotional cutoff है. Yes. There is a time जो कि अभी आपकी जो जनरेशन है ना, उस जनरेशन का भी ये एग्जैक्ट इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपसे भी जो 10 साल छोटे हैं ना, उनका ये डेफिनेटली प्रॉब्लम है, राइट. वो क्या कि हम जैसे अपने पेरेंट्स के लिए सेंसिटिव होते थे, इमोशनल होते थे, अभी तक होते हैं. हमारी कुछ ट्रेनिंग वैसी थी क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसे ट्रेन किया हुआ था. फिर जब हमारा दौर आया और हम पेरेंट्स बने, तो जो ये 90s वाली पॉपुलेशन बढ़ी हुई और सारी दुनिया बदल गई. जब हमने आँख खोली तो दुनिया वो नहीं रही, राइट. अब ना वो फ्लॉपी है जिसमें हम लोग अपना डाटा लेके जाते थे, ना अब वो कैसेट्स हैं जिनकी कलेक्शन है अब हमने सिर्फ दीवारों पर लगाई हुई हैं, ठीक है. वो रील वाली टेप्स नहीं है अब, राइट. बल्कि आजकल के बच्चों को उन चीज़ों को पता भी नहीं है कि वो क्या होती थी. सो दिस अ लार्ज शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी. नॉट ओनली टेक्नोलॉजी बट इट हैज़ इम्प्लाइज सर्टन चेंजेस इन टू ह्यूमन बिहेवियर एज वेल. तो वो क्या थी कि हम अपने बच्चों को इस टाइम पीरियड के जो हमारे छोटे बच्चे थे, हमारी लाइफ के डायनामिक्स चेंज हो गए. मोस्ट ऑफ द women आर वर्किंग, दे आर प्रोफेशनल, दे आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स, बट वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड एवरी वर्ल्डली थिंग टू आवर चिल्ड्रन. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी से कम ना हो, उनके पास सब कुछ हो. सो इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज व्हेन देयर इज़ नॉट अ बैलेंस बिटवीन अ क्वालिटी टाइम एंड बिटवीन द प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज टू चिल्ड्रन, बच्चों ने अपने पेरेंट्स के सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे और एंगल्स जो हैं वो इंक्लूड कर रही हैं. कहीं पर वो पीयर ग्रुप है, कहीं पर वो सोशल मीडिया है जो ये नीड फॉर अप्रूवल इतनी बढ़ती जा रही है, कहीं पे वो ड्रग्स हैं खुदा न खास्ता, कहीं पर वो स्टडीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं. वो इतना ज़्यादा पढ़ाई में डूब जाते हैं कि फिर घर वाले कहते हैं चलो पढ़ाई कर रहा है ना, कोई बुरा तो नहीं कर रहा. एक्सेसिव स्टडी इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव कोपिंग, इट्स नॉट अ पॉजिटिव कोपिंग. अगर आप सारी दुनिया छोड़ के सिर्फ किताब में घूमें, तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि रोज़ाना रोज़ा नहीं रखना, रोज़ाना एक रात में कुरान शरीफ ख़त्म नहीं करना. उसकी भी मियाद मुकर्रर की गई है कि 3 दिन में पढ़ो, ठीक है ना, कि ताकि आप बैलेंस रहें. और यही नहीं कि आप हर वक्त उसी चीज़ के अंदर रहें, पूरी पूरी रात आप सिर्फ जाग के यही करें. और हर रोज़ जो है पूरी रात जागने के लिए भी मना किया. ये कहा गया कि रात के इस पहर तक क़याम करना अफजल है. सो बैलेंस शुड बी देयर. दैट्स द वे ऑफ कोपिंग विच अल्लाह ताला हैज़ गाइडेड अस टुवर्ड्स. तो हम अपनी दुनिया में भी अगर उन चीज़ों में बैलेंस नहीं रखेंगे, अगर हम हर ख्वाहिश पूरी कर देंगे, अगर हर चीज़ को दे देंगे, देन वेयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसेंटिव. ठीक है, एक बच्चा है जिसके पास दुनिया की हर चीज़ है, उसको क्या दे के कहोगे कि ये तुम्हारा इंसेंटिव है? दे लेफ्ट नथिंग. एंड मैनी ऑफ द पेरेंट्स हैव फ्रॉम एफ्लुएंट फैमिली हैज़ रीच्ड टू दैट एक्सटेंट that there is nothing they can offer their children as an incentive. In return, they are emotionally cut off from families. They don't need anything else from them. उनके पास जो चाहिए तो उन्हें सब मिल गया, right? So here comes a problem.
Okay, so looking at the next thing, which is the sibling position. Now, how many of you agree? Because I think all of you have siblings. Yes. You are blessed enough that you have a sibling. But the impact of, sorry, you don't have sibling? Okay. So now you can choose someone to be your sibling to have this feeling. The impact of sibling position on development of behavior and personality is well established. You know, क्या होता है कि या तो आप बड़े को देख के लर्न कर रहे होते हैं या छोटे को देख के थोड़ा सा जेलस होके देख रहे होते हैं कि यार उसके क्या तरीके हैं, वो कैसे बात मनवा रहा है. Responsibilities which are onto you is according to the sibling position. Then the roles which are being assigned to you are according to the sibling position. But here it doesn't mean that the one who is the only child, he doesn't have any privileges, any perks or any benefits. Sometimes वो लोग बड़े खुश रहते हैं क्योंकि उनका इमोशनल बॉन्ड अपने पेरेंट्स के साथ बहुत स्ट्रांग होता है. Just because they are alone, तो उनकी needs जो हैं they are fully met. So I mean it's not about कि वो नहीं अच्छी तरह से grow हो पाते. Sometimes they are even more accomplished than others. But if अगर their emotional channels are not being done in a proper way, वहाँ पे problems भी आती हैं. अगर उनके पेरेंट्स उनको टाइम नहीं दे रहे, वो आइसोलेशन में चले गए हैं या इमोशनल कट ऑफ में चले गए, डेफिनेटली दैट मेक्स एन इशू फॉर दैम. नाउ अगर हम ये देखते हैं कि सिबलिंग पोजीशन को, तो इसके बारे में मेरा ख्याल है हम लोग एडलर की बर्थ ऑर्डर थ्योरी सब पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते. बट फैमिली डायनामिक्स में और फैमिली के रोल्स में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन. देन सोसाइटल इमोशनल प्रोसेस. एक सोसाइटी जो है, हाउ डज इट गवर्न्स द इमोशनल प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल? डज इट? Yes. Of course. पॉलिटिक्स का दौर आता है, Yes. ठीक है, धरने का दौर आता है, बाइकआउट का दौर आता है, हम सबके जहन पे कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस होता है. मैच का दौर आ जाता है, ठीक है, हम इतने मैच के लवर्स नहीं हैं मगर दिल करता है फिर भी देखें यार पाकिस्तान का कितना स्कोर हो गया था. मीटिंग्स में मैंने देखा इतने सीनियर लोग बैठे होते हैं सिंडिकेट की मीटिंग के अंदर, देख लेते हैं स्कोर कितना स्कोर कितना, तो वो हम भी पूछ लेते हैं कि इतनी क्यूरोसिटी लोगों की देख के कि हर कोई इंटरेस्टेड है या कुछ देखना चाहिए. जैसे आजकल फीफा किसी को भी पता फुटबॉल का, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है. अच्छा से वर्ल्ड कप चल रहा है, हम फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ज्यादा इसलिए कि कतर में हो रहा है ना. हाँ, दिस ईयर द फीफा हैज़ रीच टू अ नेक्स्ट लेवल, क्योंकि उसका जो उन्होंने एक अपना इस्लामिक कॉनोटेशन में जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया, दैट्स रिमार्केबल, आई थिंक फिनोमिनल. और वो उस पर तो मैं कहती हूँ वी शुड गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू कतर व्हाइल सिटिंग हियर बिकॉज दैट्स अमेजिंग. ठीक है, दे नेवर नो दैट वी आर अप्रेजिंग देम, बट इट्स ट्रू, क्योंकि वहाँ पर जो मैंने जिस तरह से मैंने उनको देखा, सो सी दिस इज द पावर ऑफ अ बिलीफ सिस्टम, दिस इज द पावर ऑफ अ रिलीजन. आप देखो कितना पॉजिटिव पोर्ट्रे कर रहा है और वो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है. ठीक है, तो मैं यही बात कह रही थी कि कोई बात जब अच्छे तरीके से प्रेजेंट की जाती है, इट कैरीज अ वेट. और वही चीज़ अगर आप हाथ में डंडा लेके प्रेजेंट कर रहे हैं तो नो वन इज़ गोइंग टू लिसन टू यू. सो सोसाइटी जो है वो आपके इमोशनल प्रोसेस को इन अ गुड वे और इन अ बैड वे, इन अ प्रोग्रेसिव मैनर, इन अ रिग्रेसिव मैनर, किसी भी तरह वो उसको चैनलाइज कर रही होती है. ठीक हो गया. सो हेयर कम्स, दीज आर द 8 इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट्स जिनकी मैंने अभी बात की है, कि ये 8 इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये बावनी ने हमें एक्सप्लेन किए कि इनको देख के हम अपनी पूरी लाइफ जो है उसकी गवर्नेंस को देख सकते हैं. नाउ आई फील दैट फर्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू द फैमिली साइकिल सिस्टम, देन वी विल गो टुवर्ड्स द थ्योरेटिकल अप्रोचेस. सो यू कैन मूव द स्लाइड्स टू फैमिली लाइफ साइकिल. यस, सो अब हम एक जैसे वो पढ़ते हैं ना, एक अमीबा का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, वो क्या कहाँ से शुरू होता है, बटरफ्लाई का, सॉरी, वो कैसे शुरू होता है और कहाँ तक पहुँचता है, कोई बताएगा जल्दी से? हाँ बिल्कुल ठीक है. विंग्स आ जाते हैं. हाँ, मुझे याद है हम बचपन में अपनी साइंस की बुक में वो बनाते थे, छोटे से होता बड़ा बड़ा. और माई ड्राइंग वॉज वेरी पुअर, सो आई ऑलवेज टेक समवन्स हेल्प के वो बना दें, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब थी. मैं अगर बिल्ली बनाऊँ तो वो खरगोश बन जाए. सो फैमिली लाइफ साइकिल में ऐसा ही होता है कि ईच फैमिली इज़ यूनिक एंड येट ईच फैमिली मूव्स थ्रू अ सिमिलर स्टेज. अब यूनिकनेस अपनी जगह है, लेकिन स्टेजेस हर बटरफ्लाई ने स्टेज वही लेनी है, चाहे वो जैसी मर्जी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बने. तो इसी तरह हर इंडिविजुअल ने इसी लाइफ साइकिल से गुजरना है. ये लाइफ साइकिल कहाँ से शुरू होता है? ये फैमिली लाइफ साइकिल जो है, हम इसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अ सिंगल एडल्ट.
सिंगल एडल्ट क्या होता है, जो 18 ऑनवर्ड एज में होता है, जो कि आप में से ज़्यादातर लोग सिंगल एडल्ट हैं, कुछ नहीं भी हैं, कुछ अगली स्टेज में जा चुके हैं, जो न्यू कपल से आगे कपल विद चिल्ड्रन में भी. सो हेयर हमारे पास इस क्लास में इस वक्त फैमिली लाइफ साइकिल की कितनी स्टेजेस मौजूद है? स्टेज नंबर 1 मौजूद है सिंगल एडल्ट. हाउ मेनी ऑफ यू आर सिंगल एडल्ट्स? ठीक है, राइट, ज़्यादातर हैं. न्यू कपल, न्यू कपल. आशना का तो हाथ ही नहीं उठा. आशना बड़ा हाथ उठाओ, तुम अकेली हो इस दुनिया में भी यहाँ इस क्लास में. सो न्यू कपल हो गए. एंड देन कपल विद चिल्ड्रन. कपल विद चिल्ड्रन है कि कपल विद टीनेजर है? सही सही बताओ. चिल्ड्रन. तो फिर तुम कपल विद चिल्ड्रन कोई और है? अच्छा, कपल विद टीनेजर आप हैं. चलिए ठीक है. लॉन्चिंग चिल्ड्रन मैं हूँ. बिकॉज आई हैव सेंड माई सन टू फॉर स्टडीज टू अनदर सिटी. तो मैं अब लॉन्चिंग चिल्ड्रन, आई हैव लॉन्च माई सन. एंड देन फैमिली इन लेटर लाइफ, जो कि हमारी सारी पॉपुलेशन जो 60 की यूथ से भरी हुई है, वो सब ने इकट्ठा लेटर एज में चले जाना है. और पाकिस्तान में बूढ़े बूढ़े से लोग रह जाते हैं बहुत सारे. सो वी शुड थिंक दैट व्हाट वी आर गोइंग टू प्लान फॉर आवर ओल्ड एज, और हम अपनी बुढ़ापे के लिए क्या प्लान करें, ये हमें सोचने की बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत. अब सिंगल एडल्ट जो है, इसकी लाइफ के साइकिल के अंदर जो इश्यूज़ हैं, जो आपकी क्लास में जो जिन्होंने हाथ खड़ा किया 25 के करीब लोगों ने, उनके इश्यूज़ क्या हुमैरा से मिलते हैं, जिनके पास एक टीनेजर है और कुछ बच्चे और भी हैं, 3 बच्चे और हैं, 2 बच्चे हैं, ठीक है. 2 टीनेज में आ गए हैं, एक टीनेज में नहीं है. आपके इश्यूज और इनके इश्यूज आर सिमिलर? नो. क्या आप में से किसी का भी वो प्रॉब्लम है जो उष्णा का प्रॉब्लम? नहीं. जो उष्णा के आशना की जो खुशी है वो किसी के पास है? किसी के पास नहीं है. ठीक है. अब आप में से कितने लोग हैं जो आशना वाला स्टेटस लेना चाहते हैं? कोई भी नहीं लेना चाहता. देख हम सब प्रॉब्लम. नहीं, सारे नहीं लेना चाहते. टाइम इज डिफरेंट. सब नहीं लेना चाहते. आप में से कितने लोग आशना वाला स्टेटस लेना चाहते हैं? ऑनेस्टली बताएं. दोनों हाथ खड़े करके. ठीक है. There is a less percentage of women who wanted to get that status. One by one, हाँ. Instantly नहीं लेना चाह रहे. Okay, how many of you are wanting to get the status of Ashna in another 5 years? So the problem is that you want to be the part of that system, but you want to be the part of system after achieving something in your life. ठीक है. देखना कहीं देर ना हो जाए. ठीक है. So I mean, this is the life cycle which everyone has a natural course of plan to go, but the roles, the dynamics, the needs, the aspirations, the way you wanted to reach there is altogether different. Yes. Agrees? Yes. Okay, then coming to, I'm not going to talk about you more because you will be offended. So from the stage where Humaira is with 1 teenager and 2 children, coming towards my life where I have 1 teenager and 1 adult, my life is altogether different than her. At my stage of life, I often rethink that what I should be doing जब मैं आपसे 10 साल पीछे थी. ठीक है. अब मैं सोचती हूँ कि यार I should have a bigger family. मुझे ऐसे करना चाहिए था, मुझे वैसे करना चाहिए था. And no one has guided me, क्योंकि मैंने कभी गाइडेंस मांगी नहीं थी. अब मैं सोचती हूँ, मैं कई दफ़ा अपनी अम्मी को भी कहती हूँ और अपनी मदर इन लॉ को भी, कि आपने तो हमें समझाया नहीं. तो 2-3 दफ़ा जब मैंने कह दिया ना, तो एक दफ़ा किसी खातून ने बड़ों में से मुझे कह दिया, तू पूछिया ही नहीं सी. So they don't want to intrude into my life. मैं जो कर रही हूँ मैं करती रहूँ. But sometimes it's good that at each cycle of this stage you need to seek advice. When I see many of the people who are at this very, very vulnerable stage, which is family in late life, the stage which is family in late life is very crucial. When you are older, when you don't have health, you don't have friends, because some of them are either passed away and some of them are not in a good health to meet you on a daily basis. फिर आपकी हेल्थ चली गई, आपकी जॉब ख़त्म है, आपकी फैमिली में आपका पावर रोल ख़त्म है. नो वन ओबेज यू लाइक दिस, क्योंकि अब्बा जी की खैर है. अब अब्बा जी इज़ टू ओल्ड टू बी गिवन एनी इम्पोर्टेंस. अब उनका इतना इशू नहीं. फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो पावर स्ट्रक्चर है ना,
इन फैमिली इट रन्स विद द फ्लो ऑफ द मनी, ठीक है। जो आप में से आज जो 25 बची थी उसमें से जो 15 लड़कियां 5 साल तक शादी नहीं करना चाह रही, वो कौन है? जो कि उसको समझ रही हैं कि अगर हम अपने आप को एम्पावर नहीं करेंगे तो वी विल फेस सर्टेन डिफिकल्टीज इन लाइफ। जी ऑब्वियसली जब आप देखते हैं Bit loud. जब स्पेसिफिकली मैंने मतलब वो एक चीज़ जैसे आपने बोला कि साइकिल देखा, तो आई वाज एक्चुअली ब्लेस्ड एनफ टू हैव माय ग्रैंडमदर विद मी ना, Right. अभी तक हैं। तो मैं जब स्पेसिफिकली उनको देखा और अपनी मदर को देखा, तो मुझे लगता है कि मेरा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर मैं उस तरह से अपने आप को, आप उस तरह की लाइफ नहीं गुजार सकती जैसे आपने अपनी दादी को और अपनी अम्मी को गुजारते हुए देखिए। राइट एनफ, आई ट्रूली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन, क्योंकि एवरीवन हैज सर्टेन लॉजिक बिहाइंड देम कि वो क्यों ये डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन के पीछे कुछ उनके पॉइंट्स हैं, कुछ क्लूज़ हैं। अच्छा चलिए, अब ये जो फैमिली इन लेटर लाइफ है ना, जब हम इसको देख लेते हैं, इसके बाद हमें एक और चीज़ नज़र आती है कि लेट लाइफ में भी डिफरेंट सेक्शंस हैं। उसमें भी कुछ ऐसे सेक्शंस आ जाते हैं जैसे हम कहते हैं ना, ओल्ड एडल्ट्स, मिडल ओल्ड एडल्ट्स, ओल्ड एडल्ट्स, जो इतने ओल्ड हो जाते हैं कि उसके बाद वो फैमिली को भी नहीं समझ आ रही होती उनको मैनेज कैसे करना। बिकॉज क्वीन एलिज़ाबेथ इज़ एन एग्जाम्पल जो कि किसी को दुनिया में और वो चीज़ नहीं मिल सकती जो उसको मिली हुई है, क्योंकि वो तो क्वीन थी, उसके ऊपर तो एक सेरेमोनियल किस्म का करेक्टर थी जिसके ऊपर पूरी दुनिया में समझो 1000 कहानियाँ लिखी जा सकती हैं। वो वाला बुढ़ापा तो नहीं नसीब होना ना भाई मुझे, आपको न, हम में से किसी को भी नहीं होना, ठीक है। सो वो एक अनयूजुअल, एक माफूकुल फितरत किरदार था जो कहानियों में मिलता है। लेकिन ओल्ड लोग जो होते हैं उनके लिए वो ऐसा ही है कि वो घर में भी एक कंसिडर होता है। हम ओल्डर एडल्ट्स की जब काउंसलिंग पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको एक पोइम सुनाऊंगी, वेला बाबा, जो कि बच्चों को स्कूल से भी ला रहा है, सब्जियां भी ला के दे रहा है, घर के सारे काम भी कर रहा है, घर की चौकीदारी भी कर रहा है, तो कहते हैं फिर भी कहते वेला ही रहना, ठीक है। तो दैट्स ट्रू। सो वी नीड टू सी दैट द प्रॉब्लम्स व्हिच emerges at every stage of your life cycle are absolutely different. They are not the same enough. Okay, so moving onwards, now we will see that what are the techniques which are used into family system. फैमिली सिस्टम में जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं दे आर द वेरिएड, और ये हमें बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी तरह की जो हमारी पर्सपेक्टिव्स हैं साइकोलॉजी के जो हम पढ़ते हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनती हैं। और इनका पर्पस क्या होता है, दैट अ फैमिली विच इज़ स्टक इनटू अ प्रॉब्लम दैट शुड हेल्प टू मोबिलाइज दैम, दैट शुड हेल्प टू give them an idea to move on. So we will be looking into it. इसमें the first one जो है that is the genogram. Anyone is familiarized with the concept of genogram? Okay, this is one of a very interesting technique, and I really like this one to be applied. So whenever you are going to go into your practical field and you will be working during your internship with different health departments, I will advise you to practically use these techniques. आप लोग वही 2-4-6 चीज़ें ना करें जो सब करते हैं, ठीक है, मक्खी पे मक्खी ना मारें, आप नए काम करें। आप ये जीनोग्राम की टेक्निक अप्लाई करें। अब ये जीनोग्राम में आप देखें ये कैसे इन्होंने फ्लोर प्लान बनाया। तो जीनोग्राम रिवील्स द फैमिली बेसिक स्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफिक्स। अब आप ये देखें, ये आपके पास पहली एक इसमें चीज़ है, ये इसमें दूसरी चीज़ है जिसके अंदर देयर आर सर्टेन नेम्स पुटेड इनटू इट, ठीक है। हम इसको कैसे बनाते हैं, सिंबल्स हैं which offers up pictures of 3 generations, ठीक है, name, dates, marriage, divorce, deaths and all the relevant factors into the genogram. अब मैं एक सेशन में जाऊँ, मैं जाके कह रही हूँ कि I need to know the history of Vaiza. I don't know much about Vaiza. I have seen her into 4 or 5 lectures in my class. Earlier to then, I often see her in the department moving around, but I have never taught them. We never spoke to each other, right? I don't know much about you and probably you don't know much about me. हम कहते हैं let's explore each other. कैसे? एक पेपर निकाला, ठीक, उसके ऊपर हमने कहा let's make your genogram. जीनोग्राम कैसे बनेगा? सबसे पहले आपने अपनी 3 जनरेशन्स जो हैं इनका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना है, या दिस इज़ योर होमवर्क एक्सरसाइज, या आपने घर से करके आनी है और मुझे सबमिट करानी है। एंड दैट विल गिव यू अ वेरी वेरी गुड फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू। हमने कभी अपने आप को खुद उस तरह नहीं देखा होता कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी फैमिली क्या है, हम तो ये ना हम बड़े अच्छे हैं, हमारे पास सब कुछ सारा बड़ा सुकून में रहा है, ज़िंदगी में कोई मसला है, ये और लोगों के मसले, ये हमारे मसले। पहली जनरेशन में देखते हैं कितने लोग हैं
क्या कभी वो किसी एजुकेशनल सेटअप में गए? क्या उन्होंने कभी नहीं? या आप ही फर्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, या आपके पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे? ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ता है। उसके बाद ये कि पहले आपने बनाया कि पहले जनरेशन में आपके जैसे दादा दादी थे, उन दोनों की क्या एजुकेशंस थी, उनकी शादी कौन से साल में हुई, ठीक है, और फिर ये कि उनके रिलेशनशिप का एंड अप कैसे हुआ। आइदर दे वर डिवोर्स, खुदा ना खास्ता, आइदर दे वर सेपरेटेड, आइदर द वन पास्ड अवे इन ईयर दिस आफ्टर दिस ईयर मच ईयर टाइम ऑफ मैरिज, और बाकी बंदे ने कैसी ज़िंदगी गुजारी उसके बाद, या वो दोनों इकट्ठे अभी तक हयात हैं। दैट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन अस, ठीक है। फिर आगे आप देखते हैं अगली जनरेशन में उनके कितने बच्चे थे। लेट्स से दे आर द 5 siblings, 3 sons एंड 2 daughters। उन सारों का वैसे ही जीनोग्राम बनाएं और उनके सारे लाइफ के मैटर्स देखें, शादियां कब तक हुई, कितने कितने साल से इकट्ठे रह रहे हैं, और उसमें से कितने का किसी का स्पाउस है या नहीं है। मैं तो जीनोग्राम बनाऊँ तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड बने, मेरी तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में से कुछ बचा ही नहीं है, आधे से ज़्यादा लोग दे आर पास्ट अवे, एंड इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन माई सेल्फ, राइट। इफ़ आई स्पीक अबाउट दैम सो आई फील पेन, मुझे तकलीफ़ होती है। मेरे 8 मामू थे, आज मेरे 1 मामू हैं, ठीक है, मेरा एक ही भाई था, इज़ नो मोर। आई मीन दैट गिव्स यू अ फीलिंग कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम कहाँ पे है, एंड इन दिस सिचुएशन हाउ यू आर इम्पॉर्टेंट टू द अदर मेम्बर्स ऑफ फैमिली। सो जीनोग्राम इज़ अ टेक्निक विच इमोशनली टचेस यू and it gives you a feeling that how you are important and what kind of the strength you can provide to family। और ये देखो वो लोग आ रहे हैं आपके पास which has certain problems, एक प्रॉब्लम के साथ लोग आ रहे हैं ना। सो जस्ट इमेजिन कि उनके लिए ये टेक्निक कितनी इंपॉर्टेंट होगी, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट वन। नाउ दिस वन इज अनदर वेरी फिनोमिनल टेक्निक, और अगर आपने ये सीख ली ना दोनों टेक्निक्स अप्लाई करना अपने क्लाइंट्स पे, आई एम श्योर, आई एम डेड श्योर आप मुझे दुआएं देंगे कि ये हमें डॉक्टर आमना ने बड़ी अच्छी सिखा दी। प्लीज़ डोंट रिस्ट्रिक्ट इट टू द क्लासरूम लेवल। फर्स्ट आपने ये दोनों अपनी खुद बनानी है, अपनी और मुझे दिखानी है। आई विल टेल यू दैट हाउ टू इम्प्रूव इट बिकॉज इट्स योर असाइनमेंट। प्लीज़ नोट इट डाउन इन टू योर डायरीज, द वन विच इज़ फॉर काउंसलिंग इन हेल्थ साइकोलॉजी, ठीक है। पेपर में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, दैट मेक अ फैमिली फ्लोर प्लान, मेक अ जीनोग्राम, ठीक। द फैमिली फ्लोर प्लान टेक्निक्स हैव सेवरल वेरिएशंस, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन टेक्निक्स एंड थेरेपीज व्हिच वी कैन कस्टमाइज, ये आपको पता है ना, हम उसके अंदर ऐड इन कर सकते हैं। जैसे कुछ कोपिंग के स्केल्स होते हैं, उसको हम अपनी मर्जी से पॉजिटिव और नेगेटिव कोपिंग के आइटम्स को चेंज कर सकते हैं। RISP में C1, C2, P1, P2 क्या है, रिलीजन के आइटम्स को कहाँ डालना है वो हम चेंज अपनी मर्जी से कर सकते हैं। The family floor plan techniques has several variations. Parents might be asked to draw the family floor plan for the family of origin. Information across generation is therefore gathered in a very non-threatening way. ठीक है? अच्छा, अब ये देखो इसके अंदर इन्होंने इसको किस तरीके से बनाया हुआ है। ये बेसिकली ओरिजिनली सबसे पहले बनाया है इस फैमिली फ्लोर प्लान को किसी पेरेंट ने। हो सकता है कि उसका कोई बच्चा आया हो इसमें, या उसने मतलब उसको मतलब किसी बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया हो, या मे बी उसने वो अपने लिए बनाया हुआ हो। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये बताते हैं कि लेट्स से कि एक पहले लेट्स पुट इन सम एग्जांपल इनटू इट। लेट्स से एक बच्चा आया जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इस बच्चे को वो ड्रग अब्यूज़ का शिकार हो गया है, ठीक है, और वो छुप छुप के पी रहा था पहले, कोई भी ड्रग एडिक्ट था किसी भी चीज़ का, और अब वो लेट्स से इज़ एन हीरोइन एडिक्ट, और अब वो जो है वो घर में उसकी वजह से क्राइसिस आ गया, देयर इज़ नो मनी लेफ्ट जो वो चुरा सके, वो ओपन कोई गलत काम कर रहा है। फिर पेरेंट्स को कहते हैं कि मेक अ फैमिली फ्लोर प्लान, और इसके सारे प्रॉब्लम्स जो इसके साथ एसोसिएटेड है, कहाँ कहाँ पर ये चीज़ आपको हर्ट करी है, इसका प्लान बना के हमें दें, ठीक है। अब इसमें बहुत वेरिएशन है कि वो कैसे बनाते हैं, क्या वो सिर्फ उस बच्चे का प्लान बनाते हैं, या वो प्लान इस तरीके से बनाते हैं जिसके अंदर वो बाकी सारे फैमिली लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसके साथ निट कर देते हैं, या वो ऐसे बनाते हैं कि सिर्फ वो अपने प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं ना। इसकी बहुत इम्प्लीकेशन और मीनिंग्स हैं। लेट्स से एक बंदा कहता है, एक पेरेंट्स कहते हैं कि सारे घर की जो तबाही और बर्बादी है ना, उसका सोल रिस्पॉन्सिबल ये बच्चा है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे फाइनेंसेस ख़त्म हो गए, इसकी वजह से हमारी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ, इसकी वजह से हमारी मोहल्ले में रिप्यूट ख़राब हो गई, इसकी, और वो अपने भी 4 गुना उसके खाते में डाल देते, ठीक है। वो ये नहीं देखते कि वो उनका उसमें जो रोल था उसमें उनको क्या करना चाहिए था या क्या नहीं करना चाहिए। सो दैट शोज़ कि वो ब्लेम गेम चल रहा है उस फैमिली में साथ साथ।
कुछ होते हैं जो ये बताते हैं कि इसकी वजह से हमारे हेल्दी रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम में चले गए। एक फैमिली में एक बच्चा अगर हेरोइन एडिक्ट है, उसके ट्रीटमेंट पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, वो फिर दोबारा से जो है वो कोलैप्स कर जाता है, वो दोबारा रिहेबिलिटेशन करते हैं, फिर कोलैप्स कर जाता है, बार बार यही प्रोसेस होता है। हज़ारों रुपया उसके इलाज पे लग रहा है, और वो पैसे कहाँ से उसके आ रहे हैं? दूसरे बच्चों की एजुकेशन से, उनको जो नर्चर करने के लिए पैसे चाहिए थे, उनको किसी बिज़नेस की सीड मनी चाहिए थी, वो पेरेंट्स उसके इलाज पे लगा राइट नाउ। सो जो प्रॉब्लम का स्केल है, प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी है, और जो प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड है, वो आपको फैमिली 4 प्लान से जो 10 सेशन करके डिस्कस करके पता लगना है ना, वो एक आपको सिंपल एक शीट से पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस पर कोई क्वेश्चन है फैमिली 4 प्लान के हवाले से आप लोगों का? जिसकी आपने असाइनमेंट दी है उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ अपने लिहाज से उसको लिखना है, या फिर आपने जैसे बताया कि वो हर एक अपने लिहाज से उसको बनाता है, बात उसकी फैमिली की सारे इश्यूज के It's entirely up to you. It's an exploratory work. Whatever you wanted to do with yourself, it's all up to you. इसमें आपकी पता है इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा? आपके जो अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना, वो सामने आएंगे, और वो जब सामने आएंगे ना, वो इस तरह से एक्सप्लोर होंगे कि आपको पहले कभी नहीं हुए हुए होंगे, और जब वो एक्सप्लोर हो जाएंगे, then with the help of these sessions, these lecture, you are going to resolve them. वो आपको बहुत फ़ायदा देंगे। ओके, देन रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग इज़ वन ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक। इसमें हम ये करते हैं कि इट्स अ मैथड ऑफ बोथ जॉइन विद द फैमिली एंड ऑफर अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स। Specifically, reframing involves taking something out of its logical class and placing it into another way. जैसे किसी ने एक प्रॉब्लम के बारे में सोचा, और उसने सोचा कि इस सिचुएशन में हमें एज अ फैमिली ये करना चाहिए था, और हमने बिल्कुल ठीक किया। आप कहते हैं लेट्स पुट इट इनटू अनदर वे। जैसे हम कहते हैं कि एग्जांपल देती हूँ आपको, हम ये बात करते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि इस बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, ये बच्चा 7 आवर्स इसका स्क्रीन टाइम है, और मैंने कैलकुलेट किया है, हम वेरी वाइज इनफ कि 5 घंटे की स्कूल जाता है, 7 घंटे में 5 डालें तो 12 बनते हैं, इसमें से ये 6 घंटे सोता है, इसका मतलब है कि ये जो है वो तकरीबन 1 घंटा कार हिसाब से पढ़ता है, 2 घंटे ट्यूशन पढ़ता है, तो इसका मतलब है कि वो सिवाय स्क्रीन देखने के वो कुछ नहीं करता। ठीक है, तो कहते हैं कि मैंने इसका कन्फिस्केट कर लिया है, इसका टैब या इसका मोबाइल या मैंने इसकी जो गैजेट्स हैं, आई हैव कन्फिस्केटेड दैम, और अब मैंने ये इसको नहीं देने, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्शन, रिटेलिएशन, और फैमिली में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नाउ अब आपके पास आते हैं, नाउ यू हैव टू सी द पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड एंड यू हैव टू सी द पर्सपेक्टिव ऑफ अ मदर। आप उसको कहते हैं लेट्स पुट इट इनटू अनदर वे। आप ये बताएं, इस सारे टाइम में से इसको अदर वे राउंड देखें कि ये बच्चा इतने घंटे स्कूल जाता है, इतने घंटे ये चीज़ करता है, इतने घंटे ये करता है, तो फाइनली उसके पास कितने घंटे बच रहे हैं? इतने घंटे। अच्छा, इतने घंटों में से जो ये देख रहा है उसमें से कितने घंटे ऐसे हैं जो आप इसको डेडिकेटेडली दे सकती हैं? ठीक है, तो वो कहती है 1 घंटा, वो भी ज़्यादा लग रहा होता है। अच्छा ठीक है, ओके, कितने घंटे इसको इसके बहन भाई दे सकते हैं? 30 मिनट्स सारे मिल के। कितने घंटे इसको फादर दे सकते हैं? 20 मिनट। अच्छा ठीक है, तो बाकी के टाइम वो क्या करेगा? उसके लिए आपने क्या प्लान बनाया है? अब उसके लिए प्लान बना के दें, अब वो प्लान नहीं बन पा रहा, दे एंडेड अप कि स्क्रीन से यूट्यूब छोड़ के आप कार्टून्स देख लें बड़ी स्क्रीन के ऊपर, बिकॉज इट्स विजिबल एंड यू कैन सी दैम। तो फिर प्रॉब्लम ये आता है कि द प्रॉब्लम इज़ दैट, प्रॉब्लम देखने से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं चल रहा वो क्या देख रहा है। सो लेट्स रीफ्रेम दैट, राइट? सो वेन एवर वी रीफ्रेम एनी प्रॉब्लम इन दिस वेरी मैनर, वो बहुत हेल्पफुल होता है। एंड बच्चों, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू दैट हम सब की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, इसका पर्सपेक्टिव बदल के देखा करो, इसका बर्तन बदल के देखो। वही बात है कि एक जार जो है, इतना बड़ा जार, मैं यहाँ पे 5 लीटर का जार रख लूँ और मैं उसके अंदर ये बिग एप्पल की एक 500 ml वाली बोतल डाल दूँ, तो जो भी बाहर से आएगा वो कहेगा बहुत कम पानी है या बहुत कम जूस है, तो मतलब हमें तो नहीं मिलेगा, हम नहीं पीते। ठीक है, और यहाँ मैं ये नेस्ले की 1.5 लीटर वाली बोतल रखूँ और इसमें मैं वो 500 ml वाली डाल दूँ, तो जो देखेगा वो कहेगा आधी बोतल तो तकरीबन है, थोड़ा सा हम ले सकते हैं। और दूसरा ये करूँ कि जो 500 ml की बोतल है वो पूरी भरी हुई रख दूँ, तो लगेगा काफ़ी है। ठीक है, तो आप जब अपनी सोच का जाविया बदलते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, दे टर्न इनटू अ बेटर वे। तो हमें ये चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए। Then the tracking. During the tracking process, the therapist listens intently to family stories and carefully records events and their sequence. Why it is important to listen to the family story? Because a same story, जो हम forensic में करते हैं ना,
एक मुजरिम को या एक जो हमारा एलिज्ड पर्सन होता है उसको कहते हैं एक स्टोरी को 5 दफ़ा सुनाना है 10-10 मिनट के 15-15 मिनट के वक्फे से। हम अपनी ऐसी कमेटी मीटिंग्स में भी करते हैं। जो सच नहीं होता उसका नैरेटिव चेंज हो जाता है, कभी नहीं रह सकता वो, जितना बड़ा मर्जी शातिर इंसान क्यों ना। फैमिली स्टोरी में एक इंसिडेंट हुआ कि बेटे की और बाप की शदीद वर्बल इनकाउंटर के बाद लड़ाई हो गई। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर चीज़ें फेंकी और फिर बाप ने उठ के बेटे को थप्पड़ लगा दिया और बेटे ने बाप को धक्का दे दिया। एक्सट्रीम हाइट। इस कहानी को अगर आप घर में मौजूद 4 लोगों से सुनेंगे तो चारों की कहानी फ़र्क होगी, ठीक है। चारों उसका अलग अलग पर्सपेक्टिव बताएंगे और वो जब पर्सपेक्टिव बताएंगे तो क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि इस घर में कौन सा बंदा किसको सपोर्ट कर रहा है, जो आपको वैसे कभी पता नहीं चल सकता। आपको पता चल जाएगा कि ये मदर अपने बेटे को सपोर्ट करिए या अपने हस्बैंड को, ये बेटी अपने बाप को सपोर्ट करिए अपने भाई को, ये मुलाजिम किसको सपोर्ट कर रहा है। आपको ये इससे मसले का हल नहीं मिलेगा, आपको फैमिली की डायनामिक्स, फैमिली की पॉलिटिक्स पता चलेगी। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट हाउ द ट्रैकिंग वर्क्स, और ये कैसे आपको ट्रैक करके लेके जाती है सही सही जगहों के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लुकिंग इनटू द नेक्स्ट टेक्निक, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स हैं सारी। फैमिली स्कल्पचिंग। अच्छा, फैमिली की जो स्कल्पचिंग है इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स फॉर रिक्रिएशन या एक थोड़ा सा लेयर टाइम के लिए फैमिली को, रिप्रेजेंटिंग फैमिली मेम्बर्स रिलेशनशिप टू वन अनदर एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसमें हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि एक दूसरे के साथ बैठ के डिफरेंट जो टाइम ड्यूरेशन के अंदर उनके जो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होते हैं, एक दूसरे के साथ जो अच्छा टाइम स्पेंड किया होता है, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं लेट्स से, अभी वही वाली बात वापस आ गई, इफ़ आई आस्क के भी हाउ वाज योर लाइफ बिफोर मैरिज, 6 महीने पहले कैसे थे शादी से पहले, ठीक है, हाँ लेकिन अब मच बेटर, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा था, ठीक है। शुरू के 6 महीने मुश्किल थे, समवन एल्स कुड हैव सेड पहले 6 महीने तो बहुत अच्छे थे, उसके बाद प्रैक्टिकल चीज़ें शुरू हो गई, ठीक है, या पहले 6 हफ्ते बहुत अच्छे थे। तो जो अच्छा वाला टाइम था, वी आस्क्ड देम टू टॉक अबाउट दोज मोमेंट्स एंड वी, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बात करनी, मतलब ये है कि वी हैव टू एक्सप्लोर दैट if that time was good, तो specifically in that very time period what you were offering to her and what she was offering to you। अगर मैं कहती हूँ जी इस क्लास से मेरी पहले तो बड़ी मोहब्बत थी, अब नहीं रही, तो आई हैव टू थिंक दैट व्हाट आई यूज्ड टू डू फॉर यू एंड व्हाट यू यूज्ड टू डू फॉर मी, जिसके रिटर्न में वो मोहब्बत कायम थी। और जब वो मोहब्बत कायम नहीं आई, वो रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो गया, प्रॉब्लम्स आ गई, कॉन्फ्लिक्ट्स आ गई और बहुत सारी मसले मसाइल शुरू हो गए, इट मीन्स कि आपके दिल में भी खोट आ गया, मेरे दिल में भी खोट आ गया, ठीक है। सो वी हैव टू सी दैट हाउ दैट फैमिली स्कल्पचर हैज़ चेंज्ड नाउ। आपकी आंखों का वो लेंस नहीं रहा जिससे आप उस मोहब्बत से देखा करते थे, या उस मोहब्बत से अब देख रहे हैं। दैन द फैमिली फोटोज, आई ऑलवेज थिंक ऑफ दिस नॉट एज अ वेरी यूजफुल टेक्निक until and unless I personally go through that। मुझे लगता था फोटोज़ देखने से क्या हो जाएगा, मतलब ये वन यूज टू हैव अ फैमिली फ़ोटोज़ के जी आपने एल्बम में लगाई हुई हैं और आप देख रहे हैं, और वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज टू पिक्चर्स को देख रहे हैं, और उन इवेंट को देख रहे हैं जो कि उस दौरान हो रहे थे, आप उनको कैसे नरेट करें। मेरे लिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत मिनिमम होती थी until and unless I experienced that myself। With the passage of time, many things change, और फैमिली के डायनामिक्स, हिस्ट्री, मेंबर्स की तादाद और चीज़ें बहुत कुछ बदल जाता है। अभी कुछ फ़ोटोज़ ऐसी होती हैं जो मैं कभी देखती हूँ तो उनको देख के ना मेरे माइंड में एक पूरी हिस्ट्री चल रही होती है कि ये फ़ोटो जो है इससे पहले, इसके बाद, इसके आगे और पीछे क्या हुआ था। वी रीलिव दैट मोमेंट, और कभी कभार रीलिविंग दैट मोमेंट इज़ सो नरिशिंग, इट्स सो फुलफिलिंग, इट्स सो it gives you lot of strength। तो ये टेक्निक काफ़ी लोगों के ऊपर अच्छा वर्क करती है कि वो लोग जो कि फैमिली के डिस्कॉर्ड के बाद आते हैं, जिनकी आपस में सुलह होने का कोई इम्कान नहीं होता, उनको जब वो चीज़ें देखते हैं कि जी कभी ज़िंदगी में वो नियाग्रा हॉल पे सारे इकट्ठे गए थे, यहाँ जलो पार्क में गए थे, तो उनको जो खुशी हासिल हुई थी वहाँ पर, बीइंग टुगेदर, बीइंग प्लेइंग क्रिकेट, बीइंग हैविंग फन इन अ बोट एंड थिंग्स लाइक दैट, जब वो उन मोमेंट्स को देखते हैं तो वो तब उनको कुछ अच्छी फीलिंग्स जागती हैं।
जो अदरवाइज़ बिल्कुल ख़त्म हुए हुए होती हैं, हमारे वो इमोशंस बिल्कुल डिमिनिश हुए होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं वो अच्छे इमोशंस रिकन्सिलिएशन की तरफ चीज़ों को लेके जाने के लिए। जी बेटा, नेक्स्ट बेटा। एट द सेम टाइम मे बी इट कैन बी वेरी पेनफुल फॉर जैसे आपने बताया हमारे उसके साथ रिलेट कर सकते हैं कि फैमिली के अंदर इतने ज़्यादा लोग जा चुके हैं, हाँ। वो इतनी शॉर्टन हो चुकी है कि आप इतना पेनफुल फील करते हो, आपको लगता है कि यार वो हाँ, अब यहीं पे तो हमने उसे ट्रेन करना है ना। अगर फ़र्ज़ करो कि वो डेथ के बाद ग्रीविंग का पीरियड चल रहा है, उसमें आप किसी को दिखाते हैं तो आप उसको ये फीलिंग उसमें देनी है कि जो आपका टाइम लाइफ में था वो आपने अच्छा गुजारा है। यू शुड बी हैप्पी ऑन दोज मोमेंट्स विच वर लिव्ड एट देयर बेस्ट। वट इफ़ कि अगर आपने ये भी ना गुजारे होते, वट इफ़ यू वर नॉट देयर एट देयर लास्ट मोमेंट, वट इफ़ यू हैव नेवर सीन देम इनटू अ हैप्पी वे। तो ये चीज़ जो है इसको समझाने के, बताने के बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं। देन फॉर फैमिली को द एम्प्टी चेयर टेक्निक आई थिंक आप लोगों ने बहुत हज़ार करोड़ दफ़ा सबने CBT में पढ़ ली होगी, बट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द फैमिली हाउ एम्प्टी चेयर कुड बी अ हेल्पफुल टेक्निक। इन एम्प्टी चेयर ऑफ कोर्स हम ज़्यादातर जो फैमिली में इश्यूज आते हैं स्पाउस रिलेटेड आते हैं, तो हम कहते हैं कि आप एम्प्टी चेयर को स्पाउस कंसिडर करें, रोल प्लेइंग करें और एक डायलॉग कैरी करें। एंड बिलीव मी, शायद अपने इनर इमोशनल सेल्फ के प्रॉब्लम्स के लिए एम्प्टी चेयर वुड नॉट हैव सर्व दैट मच द वे इट हैज़ सर्व फॉर द फैमिली काउंसलिंग। क्या होता है कि जब आप बैठते हैं और आप बात करते हैं, सर मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मैं एक पेशेंट हूँ या एक क्लाइंट हूँ और ये मैंने एम्प्टी चेयर सामने रख के मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ और मैं एज्यूम कर रही हूँ कि इसके ऊपर एक स्पाउस बैठा हुआ है जो कि मेरा स्पाउस। अब जब मैं उसको डायलॉग के फॉर्म में लाऊंगी ना, जो मेरे यहाँ पे नॉन वर्बल चीज़ें थी, तो there would not be much to say. There would be a blend of feelings. Resentment maybe, detachment maybe, confusion maybe. कई लोगों से पूछते हैं जी तानू मसला की है जी बंदे नाल जो काउंसलिंग में आती हैं, वो कहती हैं मैं चंगा ही नहीं लगता, मैं नहीं चंगा लगता। When we explore why चंगा नहीं लगता, मतलब what he has done to you, नहीं वो बस मैनू नहीं लगता। We kept on asking भाई कोई 10 हो जी सिम्टम की है, मसला की है, पर्चा की है, बैकग्राउंड की है, पता सारा चलता है। बहुत सारी बातों के बाद के उस बंदे का ओवरऑल एटीट्यूड अच्छा नहीं है, वो उसको एक बहुत समझता है कि ये कोई बहुत बिलो एवरेज चीज़ है या इसको एक रिस्पेक्टफुल मैनर में नहीं देखता। बाकी चीज़ें ज़िंदगी की चल रही हैं, कभी हंसते भी हैं, दे आर द हैप्पी मोमेंट्स एज वेल, दे द सैड मोमेंट्स, बट ओवरऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ हैव अ गुड सेंस ऑफ सेल्फ इज़ नॉट देयर। तो उसकी वजह से एक रिजेंटमेंट डेवलप होते होते 10, 12, 15 सालों में आ जाती है कि आपको शक्ल ही बुरी लगने लगती है, देखना ही नहीं चाह रहे होते। ठीक है, तो ये सारी जो टेक्निक्स है ना, दे एक्सप्लोर दैट वेयर इज द पॉइंट ऑफ दैट इमोशनल डिस्कॉर्ड। रिलेट कर रहे हो उस बात से? ठीक है, मुझे कई दफ़ा कुछ लोग मुझे कहते हैं कोई पॉपुलर फिगर मुझे नहीं अच्छा लगता, पूछती हूँ क्यों नहीं अच्छा लगता, व्हाट रॉन्ग ही हैज़ डन टू यू। ठीक है, बस मुझे नहीं अच्छा लगता। बड़ी देर पूछते रहो, नहीं यार बताओ, अब बता के ही रहो क्या मसला। पता लगता है कि जी डीप डाउन देयर इज़ अ जेलसी, उसकी सक्सेस बुरी लग रही है, उसको इतना लोग पसंद क्यों कर रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है। आप कह रहे हैं यार मेरे में भी पावर है, मैं भी खड़े होकर स्टेज पे अच्छा बोल सकती हूँ, मुझे लोग इतना पसंद क्यों नहीं कर रहे, दूसरी टीचर को क्यों पसंद कर रहे हैं, वो ऐसा क्लास में क्या पढ़ा के जाती है जो लोग उसको पसंद करें। दीज आर द पार्ट ऑफ द वेरी स्मॉल मैकेनिज्म विच इज़ broadly called jealousy and it exists a lot। और हम कहते हैं कि jealousy क्या होती है, नहीं हमें तो किसी से jealousy नहीं, but deep down in our hearts कहीं ना कहीं होती है, ज़रूर होती है। so we should work on that because वो हमारे लिए एक disaster फैमिली। अच्छा ये हो गया, नेक्स्ट पर चले बेटा, ये हमें BC की बात कर रहे थे। now comes the strategic alliance। हम बहुत सारे अलाइंसेस की हर वक्त बात करते रहते हैं। सो वाइल लुकिंग इनटू द स्ट्रेटेजिक अलाउंस, दिस टेक्निक ऑफन यूज्ड बाय स्ट्रेटेजिक फैमिली थेरेपिस्ट इन्वॉल्व्स मीटिंग विद वन मेंबर ऑफ द फैमिली एज अ सपोर्टिव मीन ऑफ हेल्पिंग दैट पर्सन टू बी चेंज्ड। हम उसकी काउंसलिंग नहीं कर रहे जिसका मसला था, हम उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं जो उसकी फैमिली का दूसरा मेंबर है, जिसके साथ हमने ये पिछली सारी टेक्निक्स करके एक्सप्लोर किया कि मसला इस बंदे की वजह से आ रहा है। एक बच्चे का बिहेवियर डिस्टर्ब है, हम उसकी मदर की काउंसलिंग करें, दैट हाउ शी शुड डील विद दैम। ये है स्ट्रैटेजिक अलायंस, बट दिस हैपेंड ओनली व्हेन द फैमिली कम्स विद द आइडिया ऑफ गिविंग द होल सपोर्ट। अगर उसमें नॉन कोऑपरेटिव मेंबर होते हैं तो स्ट्रैटेजिक अलायंस इज नॉट दैट ईजी टेक्निक टू बी हैंडल। जी फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेशेंट
सीखे दिया पर पैराडॉक्स का सैंडविच हो रहा है राइट। तो उसकी वजह से उसको सारा डिस्फंक्शन फैमिली में तो आप उसके बच्चे को ट्रीट करने से पहले उसके पेरेंट्स को एग्जैक्टली आपको पता है, हम बार बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि केयर गिवर बर्डन क्या होता है। एक फैमिली में अगर एक मेंटली, इमोशनली, फिजिकली सिक इंडिविजुअल है, घर के दूसरे लोगों पर उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये सारी बातें बहुत वेल इस्टेब्लिश हैं। सो काउंसलर का काम ही क्या है, प्रॉब्लम को लोकेट करना। और फिर एक मदर कहती है जी मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशात पूरी करती हूँ, मैं तो उनको कभी नहीं, मैं उनकी मीटिंग्स पर जाती हूँ, उनके साथ पार्क्स में जाती हूँ, उनको सहेलियों के घरों में लेके जाती हूँ, मैं उनके साथ बहुत मैं ठीक है। और उसकी ये जो मैं के अंदर उसका नार्सिज्म है ना, टू पोर्ट्रे हर सेल्फ एज अ गुड मदर, वो काउंसलर को नज़र आ रहा है, उसको नहीं नज़र आ रहा। वो जब बच्चे से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि माई मदर इज़ ओवर कंट्रोलिंग, वो बहुत ज़्यादा मुझे वो इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं होने दे रही, मुझे इतना ओवर शेडो किया हुआ है उन्होंने कि हर कोई बस वो जहाँ जाती हैं वो यही चाहती हैं कि लोग कहे कि जी इसकी मदर तो बहुत अच्छी है, इसकी मदर तो बहुत खूबसूरत है, इसकी मदर तो बहुत कॉम्पिटेंट है, ठीक है। तो उसकी वजह से उसकी लाइफ के ऊपर एक इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो टू मच गुड, टू मच टू बी एनीथिंग इज़ नॉट गुड फॉर अदर पर्सनस अराउंड यू। अगर एक मैदान में लगे हुए दरख्तों में से एक दरख्त ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो वो छोटे छोटे पौधों का पानी भी, उनकी एनर्जी भी, उनकी सारी रूट्स में से सारे वाइटामिन्स लेके खुद खड़ा हो जाते हैं और उसके साइड पे सारे पौधे सूख जाते हैं, बस एक ही दरख्त बनता है, सारे एक ही जैसे पौधे लगे हुए होते हैं। ये एक रियल एग्जांपल है जो कि एक्चुअली ज़मीन पे, ग्राउंड पे होती है। Then the prescribing indecision. The stress level of couples and families often is exacerbated by a family decision. Making process, decision not made in these areas become problematic in themselves. Sometimes क्या होता है कि जिस तरीके से कोई फैसला लिया जा रहा होता है ना, वो तरीक़ाकार ही गलत होता है, ठीक है। वो फैसला इतना गलत नहीं होता बाज़ औक़ात, लेकिन उसको कैसे किया जा रहा है, दैट इज़ बेसिकली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। सो हमें ये देखने, इसकी कोई एग्जांपल आप क्विकली पुट इन कर सकते हैं? आप उसको अच्छी चीज़ की बात कर रहे हो लेकिन आप उसे ऑर्डर दे रहे हो, फिर वो रिबेलियन आ जाएगी। जैसे आप एक बच्चे के लिए ये डिसाइड करते हो कि उसने एक यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, यू हैव द ऑप्शन ऑफ गिविंग हिम 2 आइडियाज़ कि वो बच्चा लम्स में पढ़ ले या वो बच्चा जो है वो यूईटी में पढ़ ले, ठीक है। अब आप उन दोनों में से किसी एक डिसीजन को इस तरीके से उसके ऊपर इम्पोज कर रहे हो, हालांकि ये दोनों ही अच्छे इदारे हैं, दोनों में ही पढ़ेगा, फ़ायदा ही होगा, कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन उस डिसीजन को इस तरीके से इम्पोज कर रहे हो कि वो डिसीजन करना ही एक फॉल्टी डिसीजन बन जाता है और वो बच्चा वहाँ से डिससेटिस्फाइड रहता है हमेशा। मैंने बड़े बड़े ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो बच्चों को बड़े मुश्किल फ़ैसलों के लिए कन्विंस कर लेते हैं। द अदर डे आई मेट वन ऑफ अ वेरी अकम्पलिश्ड लेडी जिन्होंने ओ लेवल्स में बहुत शानदार ग्रेड्स लिए, ए लेवल्स में बड़े शानदार ग्रेड्स लिए, और उसके बाद उनका एडमिशन हो गया लम्स में, लेकिन उनकी मदर ने उनको कन्विंस किया कि तुम यूईटी में पढ़ो। ये भी मेरे लिए एग्जाम्पल भी जहन में आई। शी वॉज द ओनली डॉटर ऑफ द वेरी हाईली क्वालिफाइड पेरेंट्स। इतने प्यार से समझाया कि यूईटी ही दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है कि उसने वहाँ से पढ़ लिया। और वो बाद में कहती थी कि मैं सोचती थी मेरी मामा कितनी स्मार्ट थी, अच्छा भला मेरा लम्स में दाखिला हो रहा था, उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि यूईटी में नहीं पढ़ोगी तो तुम्हारी तो ज़िंदगी में ये तब्दीली नहीं आएगी जो अब आई। तो बट आई डिसाइडेड कि ठीक ही रहा मेरा फ़ैसला, क्योंकि वो मेरे लिए शायद बेहतर सोचती थी। मैंने एक पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन से पढ़ा और मैंने बहुत ज़्यादा लर्न किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी जो मैं वैसे नहीं देख सकती। तो आई मीन ये कि ये चीज़ें होती हैं, एट टाइम्स डिसीजन ऐसे इम्पोज किए जाते हैं। देन नेक्स्ट पे चले। Then the next topic is role of family counselor. But I think this is another a longer part, which I think I may not be going to discuss today. So in the next class, we will be talking about the role of family counseling and then the theoretical approaches towards the family counseling. And then in these 2 lectures, the whole concept about the family counseling, the objectives, whatever we have decided to achieve today, the functional and dysfunctional families. Then we have talked about the family life cycle. Then we have talked about the Brownian 8 interlocking concept. वो सारी जो बात है वो हमारी उसमें next lecture में हमारी वो complete हो जाएगी. So with this, if you have any questions about the today's lecture, you can just let me know. You love the lecture? Oh my God, what a compliment. If it's straight from your heart, it's really appreciable. Okay, then
last thing which I would like to say is that you please remember that you have to make the family floor plan and you have to make the family genogram. These do work assignments you have to complete yourself, and also that I think do this homework exercise to yourself, that what are the communication patterns, the role, the power structure of your family, the categories where you fit in into a functional or dysfunctional family, which we have discussed today, and the concepts, the 8 interlocking concepts which we have discussed today, either any of these are available in your family or not. So I think with this, the recap of the lecture is already done, and inshallah we will meet in another class. Okay. Thank you.